رزلٹ نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نیو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا, کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ وہی پی ٹی آئی کے رہنما مان رہے تھے کہ جی ہاں ہماری تیاری مکمل نہیں تھی, ہم سمجھ رہے تھے کہ لوگ عمران خان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں ووٹ دیں گے, اور مختلف قسم کے بہانے, ہماری آرگنائزیشن کمپلیٹ نہیں تھی, ہماری آرگنائزیشن کے ایشوز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی. وہ اپنے منہ سے بھلے نہ کہیں, پی ٹی آئی اپنے ملک سے یہ نہ کہے, اپنے منہ سے نہ کہے کہ جی انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے, لیکن ان کے تمام بیانوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. وہ ریکارڈنگز آج بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو پہ ٹویٹ کی ہے, اور اس کا پیغام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سندھ کی عوام نے ناکام بنا دیا. اگر آپ باقی اضلاع کی بھی رزلٹ دیکھ لیں, چاہے آپ ٹنڈو الایار کی دیکھ لیں, ٹنڈو محمد خان کی دیکھ لیں, بدین کی دیکھ لیں, سجاول کی دیکھ لیں, ٹھٹا کی دیکھ لیں, مٹیاری کی دیکھ لیں, باقی اضلاع میں دیکھ لیں, پی ٹی آئی جو کہ عمران خان فرماتے تھے کہ میں سندھ بھر میں دورے کروں گا اور سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کا صفایا کروں گا, سندھ کی عوام نے عمران خان کو سندھ بھر میں بہت بری طریقے سے اور تاریخی شکست سے ہمکنار کروایا ہے. سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان کو, اس کے جعلی بیانیے کو, اس کے اداروں کے خلاف بیانیے کو, اس کو ملک کے خلاف بیانیے کو, اور تمام سیاستدانوں کے خلاف جو بھی اس نے بیانیہ, جو جھوٹا بیانیہ تھا, اس کو سندھ کی عوام نے مسترد کر دیا. تو یہ شروعات انشاءاللہ سندھ سے ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اب یہی پیغام, یہی بیانیہ پورے پاکستان میں پھیلائے گی. تو جس طرح بری طریقے سے تاریخی شکست پی ٹی آئی کو سندھ میں نصیب ہوئی ہے, انشاءاللہ یہ ٹرینڈ اب پورے پاکستان میں چلے گا. پاکستان میں کسی بھی صورت میں اس طرح کے سیاستدان جو تھوپے گئے, جو ظلم کے ذریعے, جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے ذریعے, اور جو زبردستی گھس بیٹھے تھے اقتدار میں, ان کا اب حشر پاکستان کے عوام ایسا ہی کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص پی ٹی آئی کا میئر کا امیدوار تھا, جس کو 2018 میں جتوایا گیا, پھر ان کا ایک اور لیڈر جو آج کل ان کا صدر ہے, وہ جو کہ ماضی میں بلدیاتی الیکشن ہارا تھا, کاؤنسلر نہیں بن سکا, وہ ایم این اے بنا اور وہ فیڈرل منسٹر بنا. اس طریقے سے ہی جو ان کا میئر کا کینڈیڈیٹ تھا, وہ ایک یونین کاؤنسل نہیں جیت سکتا, وہ ان کا ایم پی اے بنا ہوا ہے, اور وہی شخص ان کا جو ہے پارلیمانی لیڈر بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ بات عیاں ہو گئی, اور ہمارا جو موقف تھا اس کو ترجیح ملی کہ یہ یونین کاؤنسل لیول پہ بھی الیکشن کے جیتنے کے قابل لوگ نہیں ہیں, جن کو ماضی میں دھاندلی کر کر, ماضی میں ان کو زبردستی طور پر ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر کر ان لوگوں کو جتوایا گیا. ان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے. یہ لوگ کسی بھی صورت میں لائق نہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے. اور میں کہتا ہوں عمران خان کو جتنی بھڑکیاں مارتا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے انہوں نے استعفی دے دیے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی انہوں نے ختم کر دی, انہوں نے پنجاب کی اسمبلی ختم کر دی, اب کچھ غیرت کھائیں. سندھ اسمبلی میں بھی جو ان کے ارکان ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کب استعفی دے رہے ہیں. عمران خان تھوڑی غیرت کھائیں, تھوڑا اپنے بیانیے کو اور اسٹرانگ کریں, اور فوری طور پر پی ٹی آئی کے سندھ اسمبلی کے ممبران کو کہیں کہ وہ بھی استعفے دیں, تاکہ استعفے دیں, تاکہ پھر وہاں پہ بائی الیکشنز ہوں, اور پھر پتہ چلے گا کہ اب آپ کا مینڈیٹ کہاں پہ بیٹھتا ہے. جتنے بھی ابھی استعفے نیشنل اسمبلی میں اپروو ہوئے ہیں, ان میں بائی الیکشن ہوں گے. ہم ان کا ایک ایک سیٹ پر مقابلہ کریں گے, ہر سیٹ پہ ان کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے اس جعلی بیانیے کو عبرتناک شکست آئندہ نصیب ہوگی. کیونکہ پاکستان ہم سب کے لیے ریڈ لائن ہے. یہ ملک بزرگوں کی قربانیوں سے بنا ہے. اس ملک کو کے خلاف سازش کرنے کی کسی کو بھی
किसी कीमत पे भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी इख्तलाफात होते हैं, हमने भी किए हैं। सियासी तौर पर आप इख्तलाफात रख सकते हैं। आपको अगर कुछ सरबराहों से इख्तलाफात हैं तो वो भी आप जो है सियासी तौर पे अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप तो इतने मैं समझता हूं कि खुदगर्ज इंसान है, इतने एहसान फरामोश इंसान है कि जो आपका सियासी डैडी, जो आपको सियासत में लेकर आया, जिसने आपको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाया, जिसने आपको इलेक्शन जितवाए, आज आप उसके खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया को आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये कौन सा आपका बयानिया है, ये कौन सी आपकी जो है सियासत है, ये कौन सा आपका नजरिया है? अगर आप में थोड़ी गैरत है इमरान खान साहब, तो बीबीसी को या बाकी बड़े टीवी चैनल में उनको बताएं कि आप इक़्तिदार में कैसे आए थे, आपके लाहौर में जलसे किस तरह कामयाब करवाए गए थे, आपके लिए किस तरह मेंबरान को धमकियां देकर या फोन करके जबरदस्ती तौर पर लोगों को शामिल करवाया गया था, आपके लिए किस तरीके से जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में 2018 का इलेक्शन एक स्याह बाब है, और उस स्याह बाब का बेनिफिशरी और अहम किरदार सिर्फ इमरान खान था, और उसी ने ही इस मुल्क में ना सिर्फ सियासत को आलूदा किया, हमारी नौजवान नस्ल को आलूदा किया, लेकिन यहां पे पूरे माहौल को आलूदा किया। तो इसको आवाम को मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा पैगाम है कि जिस तरह सिंध के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया, उस सिलेक्टेड को रिजेक्टेड किया, अब बाकी सूबों की भी बारी है कि वो भी अब इसी तर्ज अमल पे आगे चले। सजी साहब, आपने जिक्र किया कि इंजीनियरिंग करके बुलाया गया सियासी डैडी का, तो मौजूदा विफाकी हुकूमत ने उन सियासी इंजीनियर के खिलाफ कोई अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कौन लोग हैं जो इंजीनियरिंग करते रहे? क्या सरकारी पौधों पर फाइल थे, सियासी थे, गैर सियासी? देखिए जी, जिसने भी सियासी इंजीनियरिंग की, मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि वो कौन थे, और वहां से ये पैगाम आ गए कि अब मजीद इस मुल्क में कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं होगी, मजीद इस तरीके के तजुर्बात नहीं किए जाएंगे कि घुस बैठियों को, जिनके अवाम में रूट्स ना हो, जिनको सियासत का पता ना हो, जिनको कल्चर का पता ना हो, जिन्होंने आपके मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने IMF के साथ झूठे वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने अवाम को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने करप्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब ये कोई साफ सुथरा दूध का धुला शख्स नहीं था। इसकी एक एक रिपोर्ट, इसके एक एक कारनामे, इनके एक एक स्कैंडल वो आया हो चुके हैं, वो मुल्क और कौम के सामने आ चुके हैं। ये बेईमान शख्स था, ये झूठा शख्स था, ये फ्रॉडी शख्स था, और इसके मजीद जिस तरह इसके चेहरे से मजीद मास्क उतरते रहेंगे तो इसके घिनौने चेहरे और मजीद सामने आते रहेंगे। साहब, ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के हवाले से क्या ख्वाहिश है कि मेयर मुझे कराची का मेयर कौन होगा या किस जमात का होगा? देखिए जी, मैं कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता। कानूनी, आईनी, इखलाकी हक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। यह भी हकीकत है कि 2002 के जब जनरल इंतखाबात थे, आपको याद होगा कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें रखने वाली जमात थी, लेकिन जोड़ तोड़ के बाद उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका मारा गया। आज भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी रख रही है। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और कराची की सिलेक्शन के बाद अददी नंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर सबसे ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कहा कि जी वो जमात इस्लामी से बातचीत करेगी, बातचीत कर सकती है, वो डेफिनेटली जब मुकम्मल तौर पर जमात इस्लामी की क़यादत इस चीज़ पर आमादा होगी तो उस पर रब्ता किया जाएगा। आज भी वज़ीर आला सिंध ने जमात इस्लामी के जो अमीर हैं कराची के, उनसे बातचीत की है, उनको यकीन दहानी कराई है कि जो भी आपके सिंध हुकूमत से रिलेटेड जो खदशात हैं, अगर कोई है तो उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन मोस्टली जो जमात इस्लामी के खदशात हैं या जो भी उनको रिजर्वेशन हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध से हैं, तो उसके जो खदशात है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही उनके
रिजॉल्व कर सकती है। और पीटीआई की जहां आपने बात की, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई से किसी किस्म की बात इस वक्त हो सकती है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं, सियासत में कोई हतमी चीज नहीं होती, लेकिन मेरे अभी तक की इंफॉर्मेशन में पीटीआई से कोई बातचीत नहीं हुई। साहब ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जमायत इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन जमायत इस्लामी पीपल्स पार्टी का मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आपकी ये कैसे एडजस्टमेंट होगी, क्या कहेंगे? देखिए बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर वोट पड़े, सीटें मिली, तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। मैं खुल के बता सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई वजह पूछे, ये कुछ तज्जिए निगार, कुछ हमारे एंकर हजरात जिस तरह ताज्जुब का अंदाजा कर रहे थे, मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई किसी एक शहर का नाम लें जिसमें सबसे बेहतरीन तिबी सहूलियात मुफ्त में आवाम को मिल रही हो। किसी एक हॉस्पिटल का नाम बता दें मुझे। क्या एनआईसीबीडी पाकिस्तान के दूसरे सूबों में है? क्या इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल पाकिस्तान के दूसरे सूबों में है? क्या जो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं यहां पे, जिस तरीके से कैंसर का इलाज कराची में किया जा रहा है मुफ्त, क्या पाकिस्तान के किसी और शहर में कोई ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पे मुफ्त कैंसर का इलाज हो रहा हो? वो कराची में हो रहा है। क्या सिंध में अगर गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट फ्री में हो रहा है लोगों का, आम आवाम का, पाकिस्तान में कोई ऐसी हॉस्पिटल है? नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कराची में खिदमत की है, हमारे पास जवाब है, हमारे पास सेहत में, हमारे पास अभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बसेज है वो कराची में चल रही हैं और आवाम को 25 किलोमीटर जो है वो 50 रुपए में आवाम जो वो सफर कर रहे हैं, बेहतरीन सहूलियत कर रहे हैं। मतलब इस तरह हर सेक्टर में बता सकता हूं कि रोड नेटवर्क बन रहा है। हमारे नाज़मों ने, जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने काम किया, पार्क्स बन रहे हैं। मतलब ठीक है, काम की गुंजाइश है, 100% हम नहीं कहते हमने किया है, लेकिन कराची के अवाम को नजर जरूर आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही है जो यहां पे काम करे, डिलीवर कर रही है। जमायत इस्लामी बताए कि जी 2018 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, उससे पहले 2013 के इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई, 2008 के इलेक्शन में शिकस्त हुई। उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है पिछले 15-20 साल में कि कराची के अवाम उनको वोट दें? ताज्जुब तो हमें होना चाहिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अनलिमिटेड पैसे पता नहीं कहां से आ रहे थे, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी इनकी कैंपेन चल रही थी और करोड़ों रुपए की कैंपेन चल रही थी और पैसा पता नहीं कहां से आ रहा था, उसका भी कोई अकाउंट फॉर नहीं है। तो जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उनको जो है वो इतनी सीटें मिले? वो जवाब दे वो है, हम जवाब दे नहीं है। हमने काम किया है, हम अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमने गवर्नमेंट जो चीज डिलीवर की है उसको हम बता भी रहे कि हम ये चीज डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को महसूस भी हो रही है कि जी हाँ ये चीज बेहतर हो रही है। उन नई जदीद बसों में आप लोग भी बैठ रहे हो, आपको फील हो रहा है कि जी आप कोई बेहतर चीज हो रही है। आप उन पार्क्स में बच्चों के साथ जाते हो, पता होता है कि फील हो रहा है। हर शख्स, अल्लाह रहम करे, कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है, आप लोग जितने बैठे हैं, जिनके कोई ना कोई वालिदैन, पेरेंट्स, रिश्तेदार इन हॉस्पिटल में जा रहे हैं, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। आप लोगों को नजर आ रहा है कि जी हाँ एक हमारी हुकूमत है, उस हुकूमत ने हमें ये मुफ्त इलाज फराम कर रही है और क्वालिटी का इलाज हमें फराम कर रही है। जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि उनको सीटें मिले? तो जस्टिफिकेशन हमारे पास तो मौजूद है, ताज्जुब उन लोगों के पास है को हो रहा है जिन्होंने एक माइंड सेट किया हुआ है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ। जिन लोगों ने माइंड सेट किया कि जी पीपुल्स पार्टी को तो वोट नहीं पड़े होंगे, जी क्यों नहीं पड़े होंगे पीपुल्स पार्टी को वोट? जी जिसने खिदमत की क्यों नहीं उसको वोट पड़ेंगे? माजी में अगर आपने धांधलियां कर लियारी में आपने पीपुल्स पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश की तो लियारी के अवाम ने आपको बल दिया। आपने जब धांधलियां नहीं हुई तो आपको उन्होंने जवाब दे दिया। मलीर में आपने खिदमत की है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बने हुए हैं। मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया? कोई ऐसा एक भी सेक्टर नहीं जिसमें जहां पे काम नहीं हुआ। हर सेक्टर में, हर मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट के हर इदारे में वो काम हो रहा है। तो डेफिनेटली हमें वोट पड़े। क्वेश्चनेबल वोट जमात इस्लामी का जरूर है। अब अगर जमात इस्लामी ने एक माइंड सेट किया हुआ है कि नहीं जी हम नंबर 1 पे थे, कहां से थे, क्यों थे, आपने ऐसा क्या किया आपको वोट पड़े, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वो जिद जो है, अब जिद जो है वो जिद, बच्चे की जिद मानी जा सकती है, लेकिन बच्चे की
कोई ब्लैकमेलिंग मानी नहीं जा सकती। सजीद साहब, ये आपने इजलास किया है कि अभी आपने एक जो रकम खर्ची हुई है इलेक्शन के दौरान, तो एक यूसी का नाजिम पर कोई कदगन है कि कितनी रकम जो है इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर सकता है? क्योंकि ये तो मेयर का ओवरऑल इलेक्शन तो नहीं है जिसपे वो एक यूसी नाजिम कितने पैसे खर्च कर सकता है? और जो आपने जमात इस्लामी के रकम खर्च करने की बात की, तो इस हवाले से आपने FIR किसी और से कोई तहकीक करने की कोशिश की? नहीं जी, हम इस पे हमने नहीं कोई इंक्वायरी की कि जमात इस्लामी के नाज़मीन के लिए कैंपेन कितने की चली, और वो सियासी कैंपेन थी 100%, सबको पता था। उसमें आप इंतखाबी निशान भी दिखा रहे थे, वोट भी मांग रहे थे, इसकी कैलकुलेशन कितनी होनी चाहिए आपने कितना, कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि बस हर हाल में किसी को जो है किसी के खिलाफ इस तरह की चीजें करनी है। लेकिन ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे। कि कराची में किस पार्टी नहीं जीत सकती है। कराची में कोई सिंधी जो है उसका मिसाल बन सकता। चलो शमीम नकवी ने कहा था कि वादर है जो कराची में सिंधी स्टिंग आता है। इस सूरत हाल में आपके ऊपर ये तनकीद इसलिए हो रही है कि दूसरे सूबों से दूसरे इलाकों से माइग्रेशन हुई है कराची में ज्यादा अक्सर में। अभी आपके MLA ने बिल पेश किया नेशनल असेंबली में कि 6 महीने कराची में कोई भी रहे तो वो अपना डोमिसाइल बना सकता है या वो अपना कार्ड बना सकता है। तो खुद ही आपके लिए मुश्किल नहीं होगी बाद में चल के? नहीं, मेरे ख्याल से अगर बिल पास तो नहीं हुआ, अगर हो सकता किसी की इंडिविजुअल ऐसी चीज हो, मेरे सामने चीज नहीं आई है। अगर कोई चीज आएगी डेफिनेटली हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसको डिस्करेज करेंगे। सजीद साहब ये बता दें कि कराची को बेहतर बनाने का क्या प्लान आपके जहन में है? आपका मेयर क्या नया लाएगा कि आपके लिए यादगार बने कि आप भी कभी कराची का मेयर जो है वो आपका मुंतखब हुआ था और उससे खिदमत? देखिए जी, कराची के जो जेन्युइन इश्यूज है ना, वो इश्यूज पे काम हो रहा है। कराची के इस वक्त जेन्युइन इश्यूज जो है उसमें डेफिनेटली पीने का पानी है, उस पर K4 पे एग्रेसिवली काम हो रहा है, और मेरी इत्तला के मुताबिक 2-3 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको दोबारा आ रहे हैं कराची में उसी प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा इशू कराची में सड़कों का है, जो बारिशों में जो हिस्टोरिकल बारिशें हुई जिसमें सिंध में भर में गांव के गांव सैलाब में डूब गए, और एक बहुत बड़ी तादाद में बारिश, अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी। तो कराची में भी बारिश हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़े उसने माजी के, उसकी वजह से सड़कें वगैरह खराब हुई। उन सारे सड़कों वगैरह पे काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट कर रही है। जो जो हमारी स्ट्रीट्स खराब है, जो चीजें खराब है, उस पर काम चल रहा है। हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर हैं, और जहां पे और मजीद बेहतरी गुंजाइश होगी वो भी हम करेंगे। और बाकी जो कराची के इशूज हैं, डेफिनेटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने तमाम उन इलेक्टेड नुमाइंदों को कहा है कि जी हर हाल में जो लोग भी जीते हैं उन्होंने अपने आवाम की खिदमत करनी है। जिन जिन लोगों ने एतमाद किया है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पे, तो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। आवाम का वोट हम पर कर्ज है, और वो कर्ज में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको उनकी उम्मीदों पे मुकम्मल तौर पर हम उतरे, और जो है उनकी उम्मीदों की के तहत जो है वो काम करें। वो तो मजाक कर रहे थे इस्तीफा देकर, आपने तो सीरियस में कबूल कर लिया। क्या डर के एतमाद का वोट लेने से शहबाज शरीफ साहब? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पूरे हैं, नंबर्स का कोई इशू नहीं है। अभी अगर फेडरल गवर्नमेंट या स्पीकर नेशनल असेंबली ने कोई इन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि क्योंकि नुमाइंदगी पूरी नहीं है असेंबली में और वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आना है, तो उन्होंने कोई डिसीजन किया होगा वो देखकर, लेकिन कोई डर और खौफ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जिस तरह जमात इस्लामी कहीं ऐसा मेयर तो नहीं आएगा जो इख्तियारात का रोना रो रहा हो या धरना देने की सियासत कर रहा हो? कैसा मेयर आएगा, थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए जी, गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी मेयर आएगा वो पॉजिटिव होगा। कोई भी मेयर हो, सिंध हुकूमत कराची की खिदमत के लिए उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो, लोगों को बदजन ना करें। आप, मैं ये कहता हूं कि लोगों को बदजन ना करें। लोगों की उम्मीदें हैं, जब वो कोई शख्स वोट देने जाता है तो उसके जहन में 100 चीजें होती है, 100 किस्म के सवालात होते हैं, तो वो लोगों का एतमाद बहाल हो, सियासत में लोगों का एतमाद बहाल हो, सियासतदानों में लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए।